respected President Sir, Treasurer Ma'am, Director Sir, Headmistress Ma'am, there were teachers and my fellow students. Attention. Today, as a gentle morning breeze carries the echoes of our glorious history, we gather under the shade of a sacred tricolor to commemorate the 80th Independence Day of our motherland. Freedom was not a gift bestowed upon us by chance. It was a promise redeemed through the sweat, blood, and the unflinching spirit of millions who dared to dream of a sword India. Let us gather today not only to commemorate our glorious past, but also to renew a commitment towards building a stronger, kinder, and more progressive nation. I extend a heartfelt welcome to each one of you. Your gracious presence adds immense dignity and joy to the celebration. The anthem has reminded us that despite our many languages, traditions, and beliefs, we remain one nation, one people, and one destiny. It is this unity that has carried India through every challenges and continues to illuminate our path towards the future. In every note of music lies a reflection of the human spirit. In every chord of harmony, a symbol of our nation unity. Our school choir takes the stage now to deliver a soul-stirring vocal rendition that captures the very essence of a motherland journey. Let us listen with quiet pride and reflection. Please welcome our talented school choir with a huge round of applause.
Thank you, dear students, for that uplifting performance. Your melodious voices beautifully reminded us that patriotism is not merely spoken, it is deeply felt. Dr. APJ Abdul Kalam once said, dream, dream, dream. Dream transform into thoughts and thoughts result into action. Every generation inherits a freedom won by the previous one. It is then entrusted with the responsibility of preserving and enriching it. To reflect upon the significance of Independence Day and the responsibilities that accompany freedom, I invite Zara for the English speech. Please welcome our speaker to the podium. Of all the days that we celebrate in our national calendar, Independence Day is one of the 3 red-letter days for nationwide celebration, and it means the world to us. We liberated ourselves, our nation, and our country from the malicious grasp of foreign intruders who enslaved us for centuries, in fact, a millennium. India, the cradle of civilization, the seedbed of culture, faith, philosophy, and science, had been enslaved by rank new learners who only did genocide and plunder. Not just that, they even brainwashed the Indians so much that they started hating their own culture and imitated the foreigners who only meant to destroy them and uproot them never to rise again. But we all know that the truth always prevails. So, in the 19th century, there were uprisings all over the Indian subcontinent. They took on massive proportions and became gigantic revolts. They took on the form of a struggle for independence. These movements were the talk of the world. India was leading the world without even commanding it. Yes, there were leaders of the stature of the Turkish Kemal Pasha who stood dauntlessly against the Caliphate regime and was successful in driving him out. But the Indian struggle compared to this was not only greater but much more complicated. We were fighting foreign aggressors who were adamant and would not budge easily, starting with Madanlal Dhingra, Mangal Pandey, internationally known figures like Mahatma Gandhi and Sarojini Naidu. They all jumped into the fray to sacrifice their lives for the sake of independence. Eventually, their noble deed, their lofty idea paid off, and on the midnight of 15th August 1947, India was declared free. So, we see that independence was not derived to us on a golden platter, but we had to earn it at the cost of blood, toil, and tear. Let us venerate for our soldiers and pledge to abide by the principles of freedom now and forever, now and forever. Happy 80th Independence Day to all present here and to the Indian diaspora. Long live liberty. Jai Hind, Jai Bharat.
combination of traditional song and dance, which is particularly performed to the beats of dhol. Lavani is a genre of music popular in Maharashtra. उनकी राग से तिरंगा सजा दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्देशक महोदय, गणमान्य सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 का दिन वो दिन था जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश ने आज़ादी की सांसें ली। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारे शहीदों के बलिदान, हमारे नेताओं के संघर्ष और हर उस भारतीय के सपने की जीत है जिसने स्वराज का नारा दिया था। मिट गए हैं गुमनाम रहकर, नामिदा हमने कोई निशान है। उन्हीं की राख से रोशन आज ये मेरा हिंदुस्तान है। पूछोगे कभी शहीदों से तुमने क्या पाया इस बलिदान में, पूछोगे कभी शहीदों से कि तुमने क्या पाया इस बलिदान में, कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए था, बस झंडा रहे आसमान में, बस झंडा रहे आसमान में। 15 अगस्त 1947 की जीत जीरो से और उस लहू से जो आज भी इस मिट्टी में बहता है। भगत सिंह की गूंज आज भी अदालतों में सुनाई देती है, वे मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों पर नहीं। नेताजी की ललकार आज भी हवाओं में गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम इन्हें जानते हैं, इन्हें सलाम करते हैं और आज मैं आपको एक अलग सफर पर ले चलता हूँ, उन सिपाहियों के बीच जिनका नाम किताबों में नहीं रहा और उनका बलिदान धरती की मिट्टी में आज भी अमर है। 26 सितंबर सन 1942, 62 साल की एक बूढ़ी माँ मातंगिनी हाजरा लाठी के सहारे चल रही थी, पर सबसे आगे उनके पीछे 6000 लोगों का जुलूस था। सामने अंग्रेजों की बंदूकें तनी हुई थी, हुक्म मिला रुक जाओ वरना गोली चलेंगी, पर वो रुकी नहीं, आगे बढ़ती नहीं। पहली गोली दाएं हाथ में लगी, तिरंगा गिरने से पहले बाएं हाथ में थम गया। दूसरी गोली बाएं हाथ में लगी, तिरंगा गिरने से पहले उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और तीसरी गोली सीधे सीने में उतरी और उनके कटे हुए शव से आखिरी पुकार लगी, वंदे मातरम। शरीर जमीन पर गिरा पर झंडा हाथ से कभी नहीं गिरा। उधम सिंह जलियांवाला बाग में जब हजारों लाशें गिर रही थी, वो सिर्फ 20 साल का था। उसने कसम खाई और 22 साल तक इंतजार किया और फिर 13 मार्च 1940 को लंदन के गैंगस्टन हॉल में जनरल डायर के गुनाहगार माइकल ओडायर के सीने में गोलियां उतार दी। गिरफ्तार होने पर सिर्फ उसने इतना ही कहा, मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरे साथियों, ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं, जरा सोचिए हजारों और हैं जिनका नाम किसी किताबों में नहीं, किसी सिक्के पर नहीं, किसी सड़क पर नहीं। कोई माँ थी, कोई निर्वासित, पर हर एक की आखिरी सांस में एक ही शब्द था, आज़ादी।
जिसे राजस्थान की प्री ट्राइब के द्वारा शुरू किया गया और धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान और भारत में लोकप्रिय होता चला गया। I would like to express our sincere gratitude to our President Sir, Treasurer Ma'am, Director Sir, ahead of the school and school management for their constant guidance, encouragement and support in making the celebration possible. A special word of appreciation goes to our teachers and staff members whose dedication and meticulous efforts behind the scenes ensure that every part of the celebration was conducted so smoothly. We are equally grateful to our students and participants
ज्योग्राफी न सिर्फ हमारे नज़ारे बदलती है बल्कि हमारी लाइफ्स, कल्चर और सोच को भी शेप करती है। यही कनेक्शन प्राइड और यूनिटी को इंस्पायर करता है और हमें एक नेशन बनाता है। हमारा नेशनल आइडल इस लैंड की ब्यूटी, डाइवर्सिटी और शेयर्ड स्पिरिट को सेलिब्रेट करता है। चाहे हम कहीं भी रहें, पहाड़ों में, रेगिस्तान में या समुद्र किनारे, इंडिया के लिए हमारा लव हमें यूनाइट करता है और हमें एक मजबूत परिवार बनाता है।
15 दिन हुए हैं। एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, तुम्हारी हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी गाड़ी कभी नहीं मानी जाएगी। जैसा इंसान चलता रहा है वैसा ही चलता रहेगा बस। समझने की कोशिश करो भरत, तुम्हारी इस हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अकेले से नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है सब जब का हक अदा करो, मैं बेटी का हक अदा करता हूँ।
धन्यवाद आपका।
सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे तमाम साथियों, आज की सुबह एक मामूली सुबह नहीं है। एक गीत सुनने में आया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आज़ादी के मतवालों ने मौत को गले से लगाने तक से इनकार नहीं किया और नतीजा 15 अगस्त 1947 को हम बेरहमों के हाथों से आज़ाद हुए। ज़रा सोचिए, 1000 साल की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, और उसके बाद एक खुली हवा में सांस लेने में कितना मज़ा आता है वो हम और आप महसूस नहीं कर सकते। उन लोगों ने महसूस किया जो लोग ज़्यादातर आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा आपसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक इंसान, एक बच्चा तमाम हालात को बदल सकता है। जब हमने जालिमों को भगा दिया तो उसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। दिल से जो चीज़ मांगी जाती है उसे कोई रोक नहीं सकता, और दुनिया में अपने देश से ज़्यादा प्यारी कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब इसको संभालने और बनाने में किसका सबसे ज़्यादा रोल हो सकता है, आप लोग बताएं। बच्चों का। जवान लोग अपनी आधी ज़िंदगी जी चुके, बच्चों के सामने एक लंबा अरसा है, और जब ये बच्चे ठान लेंगे कि हमें कुछ कर गुजरना है तो वो काम हो के रहेगा। प्यारे बच्चों, दुनिया में अगर इज्जत और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो इंसान मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसका फल एक न एक दिन भगवान ज़रूर देता है। प्यारे बच्चों, आपके इस स्कूल में हमारी कोशिश है कि आप लोग दुनिया की हर वो चीज़ एक्सप्लोर करें जो आजकल की सभ्य दुनिया में अन्य देशों के लोग भी किया करते हैं। अभी आपको बाहर जाने का बहुतों को मौका नहीं मिला होगा, मुझे ऐसा मौका कई बार मिला, और मैंने जो प्रतिभाएं देखी हैं वो अगर उसका बयान किया जाए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आज की मौजूदा ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें कोई शक और शुबे की बात नहीं। हम लोग अपनी भावनाओं को हिंदी में जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, वो किसी और ज़बान में मुमकिन है ही नहीं। पर बदलती हुई दुनिया की ये सच्चाई भी है
कि अंग्रेज़ी के बगैर काम नहीं चल रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा गांव है पूरी दुनिया, जहाँ पे एक दूसरे से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए एक लिंक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और वो तयशुदा है कि वो अंग्रेज़ी मान ली गई। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है आजकल के दौर में, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये भी एक भगवान की दी हुई बुद्धि के कारण ही तो AI बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की बुद्धि और उसके दिमाग की वजह से बना है, और आज वो इंसान की बुद्धि को रिप्लेस कर रहा है। प्यारे बच्चों, हम सब और हमारे सारे स्कूल के टीचर्स खुद अपने को ठीक कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में भी वो प्रतिभा नज़र आए जो एक आम इंसान से बेहतर होती है। इसलिए मैं आपसे सबसे ये कहता हूँ कि जितनी भाषाएं आप जानते हो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो उसको सही रूप से जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जिनको भगवान ने बोलने की क्षमता नहीं दी है उनको हम लोग गूंगा कहते हैं, और जो बोलने की क्षमता होने के बावजूद भी अपने दिल की बात कह नहीं सकते अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, उनमें वही कमियां रह जाती हैं जो एक नेचुरल कमी होती है। इसलिए बच्चों, तुम लोग सब कोशिश करो। मैं कोई अंग्रेज़दा नहीं हूँ, मामूली स्कूल का पढ़ा हुआ इंसान हूँ। तुम लोगों के साथ मिल के मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करो, और अपने देश के लिए एक सितारा बन के चमको। मामूली इंसान की दुनिया में कोई वक़्त नहीं है। जब तक तुम में क़ुव्वत और काबिलियत नहीं होगी, तब तक तुम ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाओगे। इसलिए कोशिश करो। तमाम ज़बानों में फ्रेंच लैंग्वेज भी काफ़ी बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जिसको आप लोगों ने, हमारे सब लोगों ने मिल के तय किया कि हम एक एडिशनल लैंग्वेज फ्रेंच यहाँ पे पढ़ाएंगे। अभी और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द और तमाम फैसिलिटीज़ हम आप लोगों के लिए दे सकें। आपने देखा होगा टिंकरिंग लैब, इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये शोपीस है, इसको इसलिए बनाया गया है कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ के तुम नई नई चीज़ें सीख सकते हो, और ये सुविधा आपके स्कूल में दी गई। इसके अलावा AI लैब आप लोग रोज़ देखते हैं। मुझे अफसोस है कि अभी बच्चे AI लैब, AI की तरफ ज़्यादा रुजू नहीं हो रहे। तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। हम लोग भी नहीं जानते कि AI क्या है। आपके ज़्यादातर माँ बाप भी नहीं जानते कि AI क्या है। ये जानने समझने के लिए तुम में क़ुव्वत और ताकत है, तुम लोग कर सकते हो। तुम्हारी प्रतिभाओं को और निखारने के लिए स्टूडियो की स्थापना की गई।
लगभग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं लोगे तो ये तुम्हारा पैसा बर्बाद चला जाएगा। ये जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है ये तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारी तरफ से होता है। तुम्हारे माँ बापों का कोटि कोटि धन्यवाद जो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे स्कूल में है उसका भरपूर फायदा होगा। डिसिप्लिन दुनिया की चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता वहाँ कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी स्कूली ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करो। तुम्हें उड़ने की पूरी छूट है, पर तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में। प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम को देख के दिल बाग बाग हो गया। जिन 2 बच्चों ने, भूमिका और हमजा, जिन्होंने यहाँ पूरे प्रोग्राम को कंपेयर किया, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कंपेयरिंग की और बच्चों के साथ प्रोग्राम पेश किया। क्वायर के बच्चों को कभी तारीफ हो नहीं पाती। मैं क्वायर के बच्चों को बहुत तारीफ करता हूँ कि बेहतरीन सॉन्ग उन्होंने यहाँ पे पेश किया, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इंग्लिश स्पीच, हिंदी स्पीच, उर्दू स्पीच जिन बच्चों ने कही, ज़ारा ज़मीर, पार्थ शुक्ला और अद्विका मिश्रा। अद्विका, तुमने जिस तरह की उर्दू ज़बान यहाँ बोलने की कोशिश की है, kudos to you. You are a great person. You have done miracles. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उर्दू ज़बान को इतने सही प्रोनाउंसिएशन से बोल पाना मेरे लिए भी मुश्किल है। पर इस बच्ची ने इतनी मेहनत की कि इसने उर्दू का को समझा, उसका प्रोनाउंसिएशन देखा और उसने बेहद बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही। जिन बच्चों ने यहाँ डांसेस, पूरे देश भर के तमाम सूबों में जिस तरह से डांसेस होते हैं उनका प्रदर्शन किया, बच्चियाँ बहुत अच्छी डांसर्स हैं। और क्यों ना एक डांस एकेडमी भी स्थापित कर दी जाए, क्यों बच्चों? डांस से मन को शांति मिलती है, जिस्म को सुकून मिलता है और जिस्म का एक बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा तो तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, यू आर ऑल आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। wonderful preparation, and I can see some new faces in the orchestra, जिसको देख के और अच्छा लगता है कि नए बच्चे इसमें आए। 10-15 बच्चों से कुछ नहीं होना है। होना जब है जब हमारे पास एक पूरी टीम हो कि 200 बच्चा ऑर्केस्ट्रा के लिए तैयार है। You have done a wonderful job, great job. अब बारी आती है, एक स्किट पेश किया गया है। ये उन दिनों की याद दिलाता है जब लोगों ने अपनी जान की अहमियत नहीं दी, जान और माल की फिक्र नहीं की और वो हंसते हुए सूली पे चढ़ गए। बच्चों, हम लोग इसको सोच के समझ नहीं सकते कि उनकी क्या भावनाएं देश के लिए रही होंगी, उनके दिल में क्या जज्बा होगा। लेकिन उस जज्बे को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक स्किट के ज़रिए पेश किया गया और मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि तुम में से कुछ बच्चे अच्छे एक्टर निकल सकते हैं।
और ज़रूर निकलेंगे। एक्टिंग जितनी नेचुरल होती है उतनी अच्छी होती है। एक्टिंग करने के लिए एक्ट तो करना पड़ता है, लेकिन अगर उस एक्शन में, उस एक्टर में अपने दिल की भावना प्रकट साथ साथ होती है तो एक बहुत अच्छा एक्टर बन जाता है। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में भगवान ने सभी सुविधाएं लगभग दी हैं और यही दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएं जिससे कि आप जब यहाँ से बाहर जाएं तो आपको एहसास कमतरी ना हो, आपको लगे कि एक आप बहुत अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम लेके आए हैं। मेरी दुआ है कि तमाम बच्चे, तुम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और देश का मान सम्मान बढ़ाओ। इसी के साथ मैं मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके स्कूल का मैनेजमेंट और इसके जो प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचर्स हैं, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। कितना भी आप सोच लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, अगर सब हाथ मिल के एक साथ, एक उंगली तोड़ी जा सकती है, 2 उंगलियां तोड़ी जा सकती हैं, पर जब ये पंजा हो जाता है तो ये तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपके स्कूल के हर एक टीचर्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी बातों को सिर्फ ऐसे न लीजिए कि ये एक कस्टमर ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने दिल से और लगन से आप काम करते हैं। आपकी ज़रूरत समाज को है, आपकी ज़रूरत इन छोटे छोटे बच्चों को। अगर आप परेशानियों से हाथ खड़े कर देंगे तो आप पूरे देश का, पूरी रेस का, पूरी दुनिया का आप नुकसान कर देंगे। तो क्यों ना हम लोग सब इस पावन दिवस पर ये मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि स्टूडेंट्स को अपना रोल अदा करना है, टीचर्स को अपना रोल अदा करना है, मैनेजमेंट को ईमानदारी के साथ स्कूल को चलाना है। तो क्या मैं उम्मीद करूं तमाम बच्चों से और टीचर्स से कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया हाँ कह के मुझे जवाब दे दें। बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, लेकिन शायद कुछ टीचर्स को भी मैं समझाने में कामयाब नहीं हूँ, क्योंकि टीचर्स की भी आवाज़ नहीं आती है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल में रख के उस तरह से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देश के लिए एक यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट बनो, और इसमें कोई शक नहीं, 150 करोड़ आबादी वाला मुल्क दुनिया में कभी पीछे नहीं रह सकता। उसको आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, बढ़ना ही है। दुनिया में इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़ा यंग जनरेशन किसी मुल्क में नहीं है, हमारे पास है। तो हमें अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करना है और दुनिया में अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Adiba. As this glorious morning draws to a close, our hearts are filled with pride, gratitude, and a renewed commitment to our motherland. From the immortal thoughts of revolutionaries to the rich harmonies of orchestra, today's presentation reminds us that the destiny of a nation is written in its classrooms and in the hearts of its youth. To quote a profound truth, the best way to honor the past is to build a future worthy of its sacrifices. May India always remain strong in spirit, united in purpose, and radiant in hope. Thank you all for your gracious presence. Jai Hind, Jai Bharat.